asking you questions that you will become uncomfortable with. If the ball is in your court, try to prolong it and keep it as much in your court as possible. Okay? So you start with, as Juma Sahib has said, you would explain to the patient, mom, you would admit the patient, you would do the symptomatic treatment, and for the possible surgery, you would do all sort of preparation which you say. लेकिन सबसे कहना जी मैं बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करूंगी ये गलत बात है बेसलाइन जरूर करें लेकिन ऑर्डर ये नहीं देखिए ना वो माँ कहेगी कि बच्ची की उल्टी नहीं रुक रही और आप कहते हैं कि जी खून का सैंपल लेना है वो हिल रही है just make the patient comfortable. Tell about the diagnosis. Prepare for possible surgery. Okay. यही आपकी कंसेंट है आपने बात करनी है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है क्या हो सकता है बच्चा रात को भी वर्ष हो सकता है मुफ्त नहीं हमें रात को करनी पड़ेगी इफ नॉट हम इसको इलेक्टिव करेंगे सो ये एक अदाकारी है एंड ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ कि आप इमेजिन करें कि you are with the patient, you are in emergency, and mom brings the patient, and how you deal with it. So इसमें रट्टाबाजी की बात नहीं क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो आप स्पाइनल रिफ्लेक्सेस पे चल रहे हो सो वॉट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ दैट स्पीक्स इसलिए अगर आपके एसओपीज अच्छे हैं आपके यूनिट के आपके नॉर्मली आप ऐसे करते हैं तो आपको कतन कोई प्रॉब्लम नहीं ट्राई टू बी थॉरो try to be comprehensive and try to like answer जैसे जुम्मन साहब ने कहा as much as possible एग्जामिनर के पास जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन I just want to come back also to Khalid Saab's earlier thing where he pointed out to you that from the information that you have a midline axial lesion, midline axial, intra-axial lesion. So the next question is, what can this be? And the discussion all was कि जी कोलॉइड सिस्ट हो सकता है और वो फोर्थ ट्यूमर हो सकता है. So I would not address it like that. And I also think I would address it is that this is a 4-year-old child. It could be a congenital lesion, it could be an acquired lesion, or it could be a post-inflammatory lesion. There's no signs of sepsis and acute toxicity, but it could be so post-inflammatory. So then he would say, okay, what post-inflammatory? That's where you say it could be tuberculosis, but it's unlikely because the actual length history show and there's no previous history of febrile illness or whatever. Okay, what congenital lesion? Well, it could be a colloid cyst, it could be an erectile cyst, or the third ventricle, it could be aqueduct syndrome. So you see, and your mind is now reminding you, that congenital conceal. And then you go, like that you say, and neoplastic into what neoplastic? And you say, well, so I'm suggesting to you that please, when almost invariably, you will be in a situation there where they'll say to you, so what is this? Or what do you think this is? Don't, don't offer a histological diagnosis because you are just not in a position to offer a histological diagnosis. You're not. I mean, whatever however sure you are about the scan, 1% you could be wrong. Yeah. You can't offer a histology. What you could say is that it's a fourth ventricle lesion, it's well circumscribed, and in a child, there's narrow possibilities, and there's a what possibility. So let him take you there by your taking a stepwise approach. So don't, to me, this is really important. Don't jump at a conclusion that you want to offer. Because if in case you're wrong, then the things then they, start going off south. And then the thing, because उस बंदे का, he's right. I mean, I can't disagree with him that they don't want to fail you, but they're also human. They get irritated and they say, यार ये क्या बातें कर रही है ये, in their subconscious they think like that. So if things go slightly south, they start thinking along those lines. And you don't want that. You want to have a good open discussion by keeping things in control. And you can only keep things in control if you have your own anxiety under control. That's very important. Honestly.
And that's when you have to think what you have to think back to what Professor Khalid said. They are not there to fail. And if it's going to happen, it'll happen from your own weaknesses. So that should take care of your anxiety. The anxiety level should be minimized by this knowledge and this confidence. That if it happens, it'll happen because I've been failing. Please address your question. Yeah. Khalid, I've spoken Okay. more than Yeah. I want. Yes, क्या कह रहे हैं? speak up because nothing of the जी माइक इनको दे देना. आई मीन वी आर लाउड एनफ. अच्छा इस शोर को. अच्छा. Oh, I see. Yeah. अच्छा अच्छा चले. और कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं? देखिए आपने भी बात की रिगार्डिंग एमआरआई स्पाइन के बारे में कि आप इसमें जैसा सर कह रहे हैं कि his mother, her mother brought her with the complaint of headache and vomiting. उसमें अगर मैं एमआरआई का कहता हूँ तो वो उसमें ये नहीं एग्जामिनर करेगा कि why would you not address the ICP first? No, sure. So you remember Khalid Saab offered two possibilities. He said one is that the patient comes in. I mean, come on, you think back, so many times he comes in and you're in a situation where you can talk to the guy, beta, सर में दर्द होता है, and he says, यहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे होता है. You've had these conversations. They're not all lying flat on their backs. So it depends. You're absolutely right. I wouldn't be stupid to take the patient for a spinal MRI if he needed an urgent ventricular drain. But very often, the point I want to make to you is this. If you look at the management of fourth ventricular tumors, right? The recommendation of all the people who manage these patients after you've done is that we need to have a spinal MRI. That's part of the workup. Now, you as the treating physician at that point may decide that it's not safe. I need to do, there are other priorities. But somewhere along the line, it happened to it have to get done. और अगर आप पहले कर पाओ वो बेहतर है. That's what I'm saying. So दो क्वेश्चन मैं और पुट करना चाहूंगा and I think I would want every one of you to exercise on those lines. What morbidity and mortality would you put to the patients while consenting? आपसे में. I counsel the patient about नहीं वो तो आप complication बता रहे हैं ना. What is the incidence of morbidity and mortality? माँ पूछती थी बच्चा मेरा जिंदा बचने के कितने % चांसेस है. ठीक है ना. एक आपको पता होना चाहिए. वो complications हैं सारी है. You can make up stories, all sort of hematoma भी है, swelling भी है, owning भी है. But what I'm talking is when you are consenting, what is the incidence of complications and death in this chart? the literature about the mortality is 10 to 15%. बहुत ज्यादा है. If you go in a Western exam, you tell 15% mortality, they would let you operate. देखिए बेटा आज मेरे से आप प्रॉमिस करें. आपकी तैयारी बिल्कुल इनकम्प्लीट है अगर आपने रट्टा तो लगाया हुआ है हर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पे, लेकिन आपको उसका इंसिडेंस ग्रॉसली नहीं पता. मैं आपको एक टिप देता हूं. फॉर वॉकिंग एंड टॉकिंग पेशेंट्स गुड करना की आपकी मोर्टेलिटी 1 to 2% से ज्यादा है. एंड यही आपने बताया है. मॉर्बिडिटी ओके लेस देन 5%, जिसमें आपके हीमोटोमा आ जाते हैं, बाकी इन्फेक्शन आ जाती है. ठीक है ना. आप एक टर्शरी केयर के अंदर सारे न्यूरोसर्जिकल सेक्टर्स हैं. सो वॉकिंग टॉकिंग गुड करनासी स्कोर के अंदर आपने 1 to 2% मोर्टेलिटी बात करनी. मैं जब भी किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ दे गो ब्लैंक और ये कहते हैं कि सर हमें नहीं पता. कोई 40% बताता है, कोई 50%. कैन यू आई कांट बिलीव कि इफ यू टेल समबडी 50% मोर्टेलिटी एंड दे एग्री फॉर द सेम. सो ये वॉकिंग टॉकिंग गुड करनासी 1 to 2% mortality and less than 5% morbidity. And the worse is the Karnowski. ठीक है. आपकी सर्जरी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है मॉर्बिडिटी वाइज या तो सुप्रासेलर सर्जरी है या सीपीएन, बाकी सर्जरी सारी से जिसमें आप इनवेरिएबली मॉर्बिडिटी 5% ही रहेगी.
और mortality 1 to 2% रहेगी. But if it's a huge CP angle tumor, means 5 centimeter or above, right? If it's a big multi-compartmental supracellular craniopharyngioma, ठीक है? So then आप 4 centimeter to 5 centimeter acoustic neuroma में facial palsy की क्या है? Facial damage की क्या incidence है? 49%. हाँ जी? 49. 49%. जी आप बताएं. आप बताएं. नहीं, ये तो बात अच्छी नहीं. क्यों हुआ? Why don't you know? आप बताएं. This is why. I tell you why. I'm sorry. हाँ जी आप बताएं. You have to put like a sticker on the why. Make sure Why? having dinner. Yeah. खाना खाया भूखा नहीं आएगा. So I should be asking easy questions from him in your presence. जी. 4 centimeter should not be more. नहीं ऐसा मैं ये नहीं पूछ रहा. मैं कि व्हाट इज आप कंसेंट का मतलब ये होता है ना कि यू डोंट टॉक अबाउट एवरीथिंग, यू टॉक व्हाट आर द चांसेस. जी. नहीं देखे ना, ये को बात है कहने. आपका इंटरनेशनल लिटरेचर क्या कहता है और आपकी अपनी प्रैक्टिस क्या है? पाकिस्तान के अंदर वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ फेशियल एपिडेमिक, देन यू शुड नॉट बी शाय. ठीक है. हाउ कैन यू इंश्योर के ये फेशियल डैमेज कम हो? यू कैन डू द फेशियल मॉनिटरिंग एंड देन it has to be done by a specialized surgeon who has got a special interest in CP angle surgery. ये जो आप माध्य समी के फिगर्स लाते हैं, they don't really exist with every neurosurgeon. तो ये आप बात इस तरह से कर सकते हैं. बाकी मोर्टेलिटी जो है, द एम ऑफ सर्जरी फॉर ए बिग acoustic neuroma is to save life. ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम कंप्रेशन हैं और चीजें. सो उसमें आप मोर देन 5% मोर्टेलिटी बड़े कंफर्टेबली लिख सकते हैं. ठीक है ना. आपको आइडिया हो गया ना व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो सुप्रासेलर सर्जरी, सीपी एंगल सर्जरी, कम्प्लेक्स में 5 to 10% आप मोर्टेलिटी दे सकते हैं. लेकिन वॉकिंग टॉकिंग स्टेबल पेशेंट के अंदर आपकी 1 to 2% से ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए. सेम इज 5% मॉर्बिडिटी कर सकते हैं. मॉर्बिडिटी में आपकी इन्फेक्शन, हीमाटोमास 5 to 10% आप बड़े केसेस में कर सकते हैं. लेकिन डोंट से 20 or 30% mortality. I was examining a candidate. He said 50% mortality for a tumor. But why you are operating them? And Khalid, can I say one other thing? That this uh, this not approach, but this lack of informed information Uh-huh. is then carried on to practice Uh-huh. because I've met so many people, Uh-huh. patients, who've come and said वो न्यूरोसर्जन से मुलाकात करी थी, वो he said कि 50% इसका चांस है मरने. I've heard this so many times. So that thing about 50% they're carrying over, and Khalid is absolutely right. And honestly, for let's say a medulloblastoma, if your mortality is 50%, Should then not you be really operated. shouldn't be doing it. No, you should not be doing it. That's just not. No matter at what position you are, things would not happen. Things don't work that way. And also, apart from morbidity and mortality in terms of percentage, you should know the 5-year survival of each tumor and excision. ये आपने अगले दो जो दिन 4-5 रह गए, you think about it. Let's suppose it turns out to be medulloblastoma. क्या survival है इसकी? With the best of the best treatments. Sir, 5 years survival is more than 50%. Hmm? 5 years survival is roughly 30%. क्या? 30%. देखिए ना, बहुत डिस्क्रिपेंसी है. आप इस व्यू पॉइंट से सोचते ही नहीं है ना स्टडी करते हैं. It depends upon the histology and genetic. मैं बता दिया था बात, एक ग्रॉसली आप बात करिए यार. अगर मेडुल्लोब्लास्टोमा आ जाता है एंड आपका पोस्ट ऑफ एमआरआई पे रेजिडुअल कोई नहीं है, कंप्लीट एक्सीजन है, यू गेट कीमो एंड रेडियो, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैंड्स में 5 ईयर सर्वाइवल बहुत अच्छी है इसकी यार. यस. यस. सो आपको ना, आप अपने ब्रेन के ट्यून करें ऐसे. ये भी एक मतलब के पास होने वाले ट्रिक्स हैं. टॉक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, टॉक इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल. ठीक है. You talk in terms of the percentage of morbidity, you talk in terms of percentage of mortality, you talk logically draft the differential diagnosis. और खुद बताएं, साथ साथ बताते जाएं कि मैं ये चीज क्यों नहीं सोच रहा, क्योंकि इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है.
लेस लाइकली, लीस्ट लाइकली, नो चांस नहीं कहना। ये बात करने का एक तरीका है। और आप आपस में ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। आप आपस में जो डिस्कशन करते हैं, ऑलवेज टॉक इन इंग्लिश। शीशे के आगे बैठ के अंग्रेजी में बात किया करें अपने आप से, ठीक है? अपने जो स्किल्स हैं, यू कैन पास विद एवरेज नॉलेज, बट ए गुड vocal skills. If you have a comprehension on the language, और लैंग्वेज ये नहीं है कि आप तलफ़्फ़ुज़ बना के अंग्रेजी को ब्रिटिश एक्सेंट से करें। मैंने देखा पठान लड़के हैं, इनका नॉलेज, ये बेशक अपने नेटिव टोन में बात करते हैं, लेकिन दे हैव डेप्थ ऑफ नॉलेज। बात बिल्कुल सही करें। इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि आपका एक्सेंट ब्रिटिश है या अमेरिकन है या क्या है या स्लैंग है। बस आपने बात करनी है, लॉजिकल बात करनी है। चले जी नेक्स्ट केस पे चले। सो एनी अदर कोई ऐसा नहीं, सो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, इसको बस ऐसे लेके चले आप, स्मूथ सेलिंग करें आप, ठीक है? और माइक अपने हाथ में ही रखें आप, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग, ठीक है ना? एग्जामिनर्स आर यूजुअली, वो आपस में समटाइम्स आर इन्वॉल्व, या वो ज्यादा इनक्विसिटिव नहीं होते आपसे। वो लड़का अच्छा है, ट्राई टू बिल्ड अप इंप्रेशन टू बिगिन विद। जब आप एग्जामिनर का हार्ट विन कर जाते हैं ना, तो फिर आप छोटी मोटी मिस्टेक भी कर रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ, यू हैव टू क्रिएट एन इंप्रेशन दैट यू आर ए ट्रू प्रोफेशनल। बात समझ आ गई? आगे चले। After mentioning, better, better. हाँ, बैठ के बेटा इनफॉर्मली, ये केसेस ज्यादा हैं और हमारे पास टाइम, मेरे ख्याल में वी स्टार्टेड वेरी लेट एंड इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। Sir, so many examiners they are interested in, especially in the tumor section, like medulloblastoma and GBMs. They are more interested in genetic profiling, and survival depends on the genetic profiling and histology. So we will put these findings or only the same findings for. लेकिन आप, मैं कहूँ तो कि क्या सर्वाइवल, द सर्वाइवल डिपेंड्स देयर मल्टीपल फैक्टर्स, एज, जेनेटिक प्रोफाइल, कीमोसेंसिटिविटी, आपकी जो ड्रग्स दे रही हैं उन पे सेंसिटिविटी। यू नॉट एन ऑन्कोलॉजिस्ट, बट ग्रॉसली अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि यार इसकी सर्वाइवल क्या है, दैट्स अ क्राइम। की जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं, दैट्स द जॉब ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका जॉब नहीं है। लेकिन आपको पेशेंट को ये तो बताना है ना कि कितनी सर्वाइवल के आजकल चांसेस हैं विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसेक्शंस एंड एवरीथिंग। So always talk in terms of Karnowski, always talk in terms of the conscious level and deficits and incidence of morbidity and incidence of mortality and इसके सर्वाइवल के चांसेस हैं 5 years और 3 years और whatever क्या है आपका, ठीक है? आगे चलें जी। Sorry, just जो खालिद साहब की बात, this is really important, particularly the big ones. I mean, for instance, if you went to the exam without being able to confidently state the 5 year survival of a glioblastoma, then you're in trouble. Yeah. I think that to say that, to go into a longer discussion that the glioblastoma survival is modulated, whether it's an IDH mutated or non-mutated, and whether the methylation is positive, that discussion is not going to happen. Yeah, because that's much more something that he's right, the neuro-oncologist do. To know that only 25% of people survive a year after glioblastoma, and only 5% would survive 5 years. Know that is really important. You can't go. So जो उन्होंने दूसरे ट्यूमर्स की बताया था ना कि आपको मेडलो का तो होना चाहिए इसका, तो दिस इज में भी कितने 5 6 7 ट्यूमर्स हैं यार, आपको फर्क पर आने चाहिए। यू शुड हैव ए ग्रेट ग्रिप ऑन इट। चले प्लीज, ठीक है ना? ये भी इंप्रेशन कास्टिंग है चीजें, आपको टिप्स सारी दे रहे हैं, तो आई थिंक यूर ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू पास। हाँ, आगे चले जी बेटा, पढ़े कोई? हाँ जी। Is it going online? Huh? I'm online. Yeah. no, no, We're not online, are we? Are we? Huh? Oh, we are. We are. We should be online because I thought we should. how many guys are online? Most of them there, but we tend to build people on 11. Just 11. Yes. Okay. Zoom meeting. हाँ? Zoom. ज्यादा होने चाहिए, आई थिंक दे आर। but जब
जब ये लोग सब online थे, they were all online this morning. That was up to 50. Huh? Hey, I know, but did you not tell that everybody should be online during this discussion? Huh? Initially, it's not a plan to go online. They make sure initially नहीं था plan. Ah, chale. Because you know, sometimes you can benefit this discussion of being online. Chale ji पढ़े. On examination, there is no technological device. Right. Okay. What sort of pathology comes to your mind, you know, with that sort of history and physical examination? Mm-hmm. Why? So because there is no history of, I can exclude any infected lesion because there is no history of fever or any such signs. And so there is no history of trauma, so I can exclude trauma. Trauma 2 months की history कौन जी? It is, but the second possibility क्या होगी? Neoplastic के बाद second possibility क्या है? Infect. So you need to put this as a second. So the first is neoplastic. Okay. What do you think? What is the localization of this lesion? ये lesion कहाँ हो सकता है with that sort of neurology? Do you get unilateral papilledema in neurosurgery? क्या cause होता है? हाँ? Apart from that, को और ट्यूमर है जो यूनिट तो फिर यू नो इससे बायलैटरल आप ना रेयर जो चीजें सिनारियो है ना वो आपके बड़े अच्छे रट्टे लगे हुए हैं और नेवर टॉक अबाउट जो है वो यूनिलैटरल और यू नो तो पुराना जमाना होता था कि यू आर अरिस्टोटल इफ यू नो द 100 डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उनकी प्रोबेबिलिटी जो 0.001 वाली वो आप सबसे पहले बता दें और ये वेस्टर्न तरीका नहीं है प्रोबेबिलिटी वाइज यू नो जो कॉमनेस्ट थिंग्स है यू नीड टू टेल फर्स्ट सो आपके हिसाब से इसकी टोपोग्राफिक लोकलाइजेशन क्या है ये कहाँ लीजन हो सकता है विद दैट सेट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन okay one is midline the second possibility non-elephant area देखा दिस नो प्रोनेटेड ड्रिफ्ट मिड लाइन में भी कोई ना कोई मसला आ जाता है ठीक है लेकिन मिड लाइन लीजन कहाँ होगा इफ यू से इट्स मिड लाइन वेयर इट शुड बी Seizures actually वेयर laser ganglia would be sometimes. लेजर गैंग्लिया तो मिड लाइन नहीं होता इट्स ऑफ सेंटर वो तो मिड लाइन तो नहीं ना बोलते हाँ वो मिड लाइन है यार आप कॉमन चीजें क्यों नहीं बताते हैं देखिए दिस इज ए नॉन एलोकेंट एरिया लीजन काजिंग रेज्ड आईसीपी ठीक है हाँ सीजर्स क्या शो करती है इट्स ए सुप्राटेंडोर ठीक है ना आप इस तरह से डायसेक्ट करें इसको सीजर वुड पॉइंट आउट टू द प्रोटेंटोरियल लोकलाइजेशन द एब्सेंस ऑफ deficit, a focal deficit, would point out to the non-elegant area involvement. अब बात करें मेरे साथ आगे चले just keep on talking. So non-elegant are frontal lobe. और को non-elegant area होता है Non-dominant. हाँ Non-dominant parietal. वो non-dominant parietal जो है वो आपको gives so much signs tracing apraxia and you know contralateral motor weakness same time temporal lesion कोई sign नहीं देते आप ठीक है ठीक है ऑक्सीपिटल एरिया अगर कैल्क्राइन को स्पेयर कर दे तो उसमें नहीं पता चलता ठीक है बट द कॉमनेस्ट अगर आप यही बता देना कि ये फ्रंटल लोब का लीजन है आई थिंक द एग्जामिनर शुड बी हैप्पी सो इट्स ए नॉन एलोकेंट supratentorial lesion most likely a neoplastic what type of neoplastic would come to your differential diagnosis low grade would give you papilledema huh? If it's a low grade, it has to be massive.
और इफ इट्स स्मॉल इट, तीन चीजें जो है ना वो रेज आईसीपी करते हैं, ट्यूमर मैस करती है, सीएसएफ कलेक्शन करती है, या एडिमा करती है, और चौथी चीज कोई नहीं, और कोई चीज नहीं। Tumor mass, okay, if benign thing is very big, yes, it at the end of the day it's contained in the skull. So, or hydrocephalus, or if it produces edema. अब ये नॉन एलिगेंट में आप मुझे बताएं, when I talk it's going to be intrinsic lesion, right? और उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी ग्लायोमस की हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है? Pardon? Yes, it can be extra-axial. मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, ये कोफ्रंटल एक्सा-axial lesion which is just causing headaches and vomiting, सकता है ना, कई सालों से था डिकम्पनसेट, 2 महीने पहले हुआ, so it could be decompensated extra-axial lesion. Two, that would be my second probability. And the third one, could it be arachnoid cyst? Yes. हो सकती है, तो डर्माइड हो सकती है, तो यू कीप ऑन टॉकिंग, 4-5 अच्छी सी डिफरेंशियल डायग्नोसिस देना। अरे बट इट कैन, मे बी वो सीएसएफ की वजह से दे रही हो, सीएसएफ को ब्लॉक कर रही हो, ठीक है ना, वो डिजीज को पूछ के तो नहीं परमिट। पेपरेडिमा की तीन ही काजेस है, ट्यूमर मैस, एडिमा और हाइड्रोकेफलस, इन्हीं चीजों में देखें। सो अगर आप अच्छे बात करेंगे कि ये looks like most likely neoplastic, although we cannot exclude the possibility of an inflammatory, right? Which includes fungal or tuberculosis. When we talk about the neoplastic, it could be intraaxial lesions like gliomas, or it could be decompensated extraaxial like meningiomas. Sometimes the patient can present with arachnoid cyst like that, or a dermoid, or something like that. ठीक है, और यू कैन हैव, आपका इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर हो सकता है, पेपरेडिमा है, फिट्स हैं, you can have all sort of. So you talk logic and you dissect this question and scenario. इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो क्या करेंगे आप? What would you do? Why not CT? So it's a non-emergent condition, so I can get an MRI better. And I'm suspecting neoplastic, so MRI would give me a better. नहीं तो हर नियोप्लास्टिक में एमआरआई करवाना चाहिए। So obviously I would, but नहीं ऑब्वियसली तो फिर सीटी पहले आप करें। क्या बेनिफिट्स है सीटी के? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीटी ओवर एमआरआई? no, so it's easily available, and we can do it in any emergency conditions, and it basically gives us idea about the parenchyma and about the ventricles, and we can see if there is. It picks up calcification very well, right? It's a quick and fast and cheap and easily available, and it's a good screening thing, you know. You can do whatever, आप जो मर्जी बाद में करवाएं, लेकिन आई थिंक ऑलवेज फॉर एग्जाम से, यू नो, आप सीटी स्कैन के साथ पहले, ठीक है, nobody is going to, क्यों सर ऐसे ही absolutely, लेकिन don't jump to all those SPECT scans and fancy investigations, and at the end of the day when you build up, you do it, and you also, let's suppose I do a CT scan, in contrast, and it's a surface non-elegant tumor, why I should be going for MRI at this? मुझे क्या जरूरत है? कॉस्ट सेविंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी तो होते हैं, देखिए ना, मतलब एक सरफेसिंग लीजन है आपका एक, तो व्हाई आई वुड वांट एन एमआरआई? yes, you do MRI if it's a posterior fossa, if you need to see the vascular relationship, if something is supracellular, CT angle in depth, but if something is surfacing, why you would want an MRI scan? How is it going to help you in your, आई मीन सिटी का इतना फायदा है, आपकी स्कल बोन, आपके कोरोनल सुचर मार्किंग, क्विक टेस्ट है, चीप है, इकोनॉमिकल है। सो ऑलवेज ना, आपने जो बात करनी बेटा, आपके जेहन में उसकी लॉजिक होनी चाहिए, ऐसे चुप नहीं बैठना। बात समझ आ गई? जैसे एक लॉयर होता है ना, वो पोलाइटली जो है ना वो बात कर जाता है, ओके।
we'll do a CT scan and just see, and we may need an MRI, brain, plane and contrast, depending upon the CT. आगे चलें जी। जी, ये CT है जी। CT scan brain looks like brain actually looks like CT scan brain Excel cuts from base to vertex. What is showing? Sir, it shows extensive lesion in the right frontal region, which is starting from the base of the frontal lobe going all the way to the vertex. No, it's not going all the way to the vertex. That's wrong. It's yeah, देखिए, आपके it's a frontal lesion. Okay, it's calcified, and I can't see a lot of edema. बात को रैप अप करें। हाँ, वो जो बेस टू वर्टेक्स एंड दिस इज अ पेशेंट, ठीक है, आप बता दें ये उसी पेशेंट का है, एज है, फिर देखें इस अस्पताल में किया गया, इस डेट को किया गया, ठीक है। तो बात ये कि कितना यूजफुल होगा सीटी स्कैन, इसने एक सेकंड में बता दिया कि ये ब्लड है या कैल्सिफिकेशन। हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड कैल्सिफिकेशन? जी, ऑन स्पीड कर लें, कितने होने चाहिए ब्लड के और कैल्सिफिकेशन के? हाँ, किसके? ब्लड के। और कैल्शियम के बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ना छोटी छोटी यादें, पासिंग बाय, जो एग्जामिनर को एक ऑब्जर्वर जो होता है साथ वाला, वो ही इस किस्म का क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए जो है वो ये ऐसा डाल देता है ना, तो चलते फिरते जो है ना आपने इस किस्म की क्वेश्चंस का जवाब भी देना है, ठीक है। सो यू गो फॉर एन एमआरआई स्कैन जी। Peripheral remote hyperindex. ये दिखाना यार इधर, ये इसका माउस, दिस वन इज दिस वन या हाँ जी, अच्छा यहाँ से नहीं कर, ओ वो कांट डू दैट, वो कांट डू द फॉरवर्ड। No, he's trying to see what. ठीक है। राइट, ओके। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा एक मैं बात बताऊं, एक टिप बताता हूं एग्जाम की मैं। इफ यू हैव डिस्क्राइब ए सीटी स्कैन, अगर आप स्मार्ट कैंडिडेट है ना, जब आप एमआरआई पे आएंगे ना उसी को रिपीट ना करें, कंफर्म द सेम फाइंडिंग विद एडेड बेनिफिट ऑफ दिस, ये आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज शो करेंगे। फिर वही स्टोरी अगर आप उसमें करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आपने बता दिया ना एक दफा, फ्रंटल टोपोग्राफ लोकेशन, it's not invading the ventricular system. I cannot see any vessels in the vicinity. It's not showing a clear cut edema. यार बेटा दिखाते जाए ना आगे, मुझे दूर से नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, the same thing is coming here. That's great. Okay. Now it's very clearly showing that the lower part is enhancing. ठीक है? It is away from the ventricular system. It's polar. अब मुख्तलिफ बात करें, एमआरआई से आपने वास्कुलर रिलेशन की बात करनी है, एमआरआई आपको क्लियर कट एडिमा बताएगा, ठीक है, एमआरआई आपको एनहांसमेंट का पैटर्न बताएगा, ठीक है। तो बात वो करें जो मुख्तलिफ हो, बजाय कि आप मतलब उसी चीज को आप वही बेस टू वर्टेक्स और ये नाम है और ये है, सेम पेशेंट बेसिकली शोइंग द सेम बट विद एडेड दिस थिंग। आपको को मेथियोग्लोबिन नजर आ रहा है, को हाई सिग्नल नजर आ रहा है T1 के ऊपर, तो आप उसकी बात करें। आपको कोई हिमोसिडन नजर आ रहा है तो आप उसकी बात करें। चले जी आगे चले। सो it's just touching, it just confirms that it's just touching the frontal horn, and it is also showing that the solid part is posteriorly placed। और हमने सॉलिड पार्ट पहले देखा है, वो क्या था? कैल्सिफिकेशन। इस पे तो वाइट नजर नहीं आएगी ना, ये एक सॉलिड पार्ट भी है और इसका कैल्सिफाइड पार्ट भी है। अब व्हाट वुड यू ऑफर टू दिस पेशेंट?
मैं क्विकली मतलब कि वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू एडमिट, इन्वेस्टिगेट अदर्स, ये आपने पूरी चीजें इसी तरह ही बतानी है। आई वुड कंसेंट, इसकी कंसेंट में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बताएंगे आप? When you consent this patient, what is the probability of morbidity and mortality you are going to put to the patient? जी आप आ जाए। नहीं, लेस देन आपने तो खत्म ही कर दिया ये। यार इतने सुपर सर्जन ना बने। अरे यार 1 to 2% बता दें इससे। वाई? यंग पेशेंट, नो कोमॉर्बिड्स। आप फिर बात करें, आपको कहें व्हाई डू थिंक इट्स लो, इट्स नॉन एलिकेंट एरिया, इट्स यंग पेशेंट, देयर इज नो कोमॉर्बिड्स। कोमॉर्बिड की बहुत मोर्टेलिटी बढ़ती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, अदर्स। इट करना फैसिनेटिंग वे, अच्छी टर्मिनोलॉजीज जो है ना इनको बार बार घुसेड़े आप अंदर, ठीक है, एंड शो योर कॉन्फिडेंस एंड शो ऑफ योर नॉलेज। क्या करेंगे आप इसका? जस्ट यार ऑपरेशन का नाम बता दो। यू वुड ऑफर व्हाट? एनीबॉडी वुड डू बायोप्सी और नहीं नहीं, anybody would like to do biopsy or anybody would like to do the MR spectroscopy and hmm? ठीक है ना, कुछ लोगों को बड़ा होता है, would do the biopsy या they would just add MR spectroscopy और क्यों नहीं? क्या बताएंगे? So what's your diagnosis based on this scan now? First एक differential diagnosis जबानी थी based on history and examination. What is your differential? What is your diagnosis based on CT and MRI? It's oligoastrocytoma. कोई शक है? कौन सा कैल्सिफाइड? जीबीएम ने कैल्सिफाइड होना है? It's oligoastrocytoma most likely, although the histopathological diagnosis, it's a glial tumor with the oligocytic component because it's calcified. So what would you offer to this patient? Craniotomy, frontal craniotomy and excision. ठीक है, नॉन एलिकेंट है, वेंट्रिकल के पास थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, आप इसको टोटल एक्सरसाइज करें आप इसको। यही चीज अगर आपकी एलोकेंट एरिया में आ जाती है तो क्या प्रेपरेशन करेंगे आप उसके? पैराइटल लोब में आ जाती है, इसी तरह का लीजन आ जाता है कोई, तो उसकी क्या प्रेपरेशन करेंगे? वो जो आपने रट्टे लगाए हुए हैं सारे, वो फंक्शनल एमआरआई वाले और डीटीआई वाले, दे स्टार्ट टॉकिंग एंड ओके, दैट्स नाइस टू मेंशन एक्चुअली, but you should know, when to do awake craniotomy, when to do craniotomy under GA, you know, और आप अच्छा जी लोकलाइज नहीं हो रहा तो मैं नेविगेशन को, नेविगेशन अगर आपने पहले नेविगेशन प्रोटोकॉल नहीं करवाया हुआ, आपने नेविगेशन प्राइम नहीं की हुई, आपने आपने पहले उसका सारा मेफिल्ड क्रैम्प लगा के उसकी प्रेपरेशन नहीं की, तो हाउ वुड यू ऑल ऑफ अ सडन ब्रिंग द नेविगेशन प्रोब टू इट? सो यू शुड हैव अ कॉमन सेंस की जब भी एक लो ग्रेड लीजन या छोटा लीजन एलोकेंट एरिया के पास आएगा, I would prepare this patient with the navigation protocol. इसका navigation 1 mm contiguous cuts base to vertex होंगे, मैं फ्रेम लगाऊंगा, मैं फिर उसकी सारी उसको लगाऊंगा, रजिस्टर करूंगा, ठीक है, craniotomy करूंगा और ये, and then you can have special type of MRI which includes the diffusion tensor imaging. If needed, you can do functional MRI. एक किसी हिसाब से बात करें, और सर्जरी करने से पहले ये चीजें कराई जाती हैं, ऑपरेशन के दौरान नहीं पैदा हो जाती हैं उनकी फंक्शनल एमआरआई में देख लूंगा, डीटीआई देख लूंगा, नेविगेशन कर लूंगा। एंड नेवर एवर फॉरगेट to localize the tumor. The commonest way is a brain cannula. It still holds good. You have to do it. Khalid, can I just interrupt? Saad, so you guys started late, na? And we don't have the room forever. So should we, and dinner served, so should we take a break for, let's say, 15, 20 minutes, or should we ask them to bring dinner in? And if Khalid doesn't mind, that they're eating while he's talking. Oh, yes, that'd be great. Then we can just continue, and I prefer that. Yeah. Is everybody comfortable eating and talk? I mean, listening to Khalsa? Yeah. I think probably they won't be serving. I think somebody fills the platter decently. Wait. And just so that's just come here in 5 minutes.
Okay. All right. Great. And we'll just continue. I mean, if you, I can talk all night, you know. Okay. So मुझे कोई problem नहीं. so just stay where you are. Let Khalid Sahab take his dinner first because he needs to start talking. So please Khalid Sahab को ले जाए. Okay. And then आज मैं तो तेरे बात नहीं आप पहले आप लेके से आप लेके से. So okay we're breaking huh? Okay. So based on the discussion so far, does Saad or Farooq want to add anything? जो पिछले एक दो cases जो हुए हैं. Should we add something? Do you? I mean, I'm just asking. Do you? I'm to, Hyperdensity or that hyperdensity is not replicating MRIs. Hyperdensity RDs, so that's not replicating. yeah, you know, I did honestly. My attention was drawn here when that CT came. The CT, दिखा दो, please. Okay. So there's no question that. So first of all, I have to make sure that ये contrast नहीं है, and ये contrast लग नहीं रहा. So this is not a non-contrast scan because because the basal ganglia is there. So this is a calcification, and so it's calcification in a solid cystic tumor. It's सुनना यार, it's अब जरा दिखा दो. They're just discussing के खालिद साहब ने एक बात की थी और and because the cut is not exactly this. Yeah. That's giving you a little bit of confusion. You know, because go back to the CT. See, you see, you're not. If you can just go to the last image of the middle frame, कि तीसरा जो है, तीसरा from above and तीसरा from below. If you go to that, you can see कि उसमें तो वो जो CT MRI है वही चीज है. You see how? So it's a little confusing. That's because you're looking at just one, and here you're looking at more. Doc, you agree with me? Yes, sir. ठीक. So that's नहीं आप सही बता रहे हैं. It's heavily calcified. It's solid cystic, and the differentials are now limited. Like Khalid sort of said, I think then he said most likely. And so he modified himself because we can't be sure. Yeah, never say definitely. And but most of all the possibilities on the table, that is most likely. And if the discussion comes that what else could it be? Well, it could be a xanthroastrocytomas, which do sometimes calcify. You can have discussions like that. I mean, very rarely. Ependymomas. Yeah, very rarely it could be a hemisphere ependymoma. Yeah. And those calcifies. So, but that's a later discussion. Right. So why don't you guys go and get your dinner and come back quickly? बहुत देर नहीं लगाना. सेशन जरा लंबा होना चाहिए था इसमें ना. Yeah. I'm fine. I've just Khalid, felt a bit. Yeah. When are you leaving tomorrow? My flight is 12:45. And Yeah. And you are you're not going to see your sister. She's still here. No. She's in America. So if it's 12:45, Saad, what time do you know what time? Do you know what time his airport drop is? The guy is going to pick me up at 11:15. 11:15. फ्लाइट है सर 11 बजे आई थिंक 11:15 मुझे ले जाएंगे वो. 11:15. हाँ जी. So, Khalid, do you want to meet for breakfast about 10 o'clock tomorrow? Yeah. Huh? Yeah, that'd be great. Okay. तो यार वो कौन शो ड्राइवर कौन है? नहीं सर वो हमारे सेल्स मैनेजर हैं वो पिक करेंगे अर्शद. Okay. So अर्शद को प्लीज, अर्शद को मेरा नंबर दे दें.
और अरशद को मेरा नंबर दे दो, मुझे अरशद का नंबर दे दें. ठीक है. I will pick up Khalid Saab at 10 o'clock tomorrow from here, just before 10, because I think we need at least an hour to sit and have breakfast. Okay. And we'll just go down to the club close by. We'll sit and have breakfast there, and then I'll call Arshad there. कि वहाँ आ जाते 11 बजे. Yeah. After, ठीक है? So somebody going to pick me or you're going to I'm come going yourself? to Okay. my- So I will be down in the lobby at 10. Yeah. That'll be great. Yeah. That'll be great. With my luggage. Yeah. That'll be Of course. You're only. I will check out actually. Just a handbag. I thought you might. I was telling these guys. They said, "Ji, because we were talking about कि sir यहाँ कब पहुंचेंगे?" And I said, they said कि जी उनका वो luggage निकलेगा. Yes, come on, यार, he's coming for night. You don't carry your suitcase. Just a little, Yeah. So, okay. So So I would just basically check out at Yeah. 10. Yeah. Yeah. And be in the lobby. that'd be great. And we can, about the thing. I mean, you're right. It really should be. It really should be. Something like 2 hours before, 1.5 hours after, with half an hour for lunch for dinner. ये होना चाहिए. You know. This is your second health. No, I'm fine. I'm just enough. Just You eat little at yeah, lunch. I eat less actually. More and lunch. Lunch I do take. Yeah. I take even breakfast now. Oh, you do. And I used to take porridge, And now, ever since I've retired, so before going for surgery, I just take some omelette or fried egg or whatever, 2 toasts, and then a bit of lunch. And now I believe in like taking little meal, but maybe more frequent. Yeah. And are you having the opportunity to exercise more? Yes, I have to go to gym every day, Khana, and then the surgery med is next door. So invariably the surgery is lined up over there. So I just do gym and then go for surgery and finish it and then come back. And if it's a small surgery, I go for surgery first and then come back for gym. And I'm going to start golf actually. Oh, you do? Yeah, but my younger brother is a very good golfer actually. Is he? He's one of the very, very good golfers in Gymkhana. Really? Yeah. Wow. He's playing a long time? He's oh yes. He's civil servant. He's a doctor and civil servant. He's a federal secretary. Oh, so he's in Istanbul? He was still he is awaiting posting at the moment. He was federal secretary petroleum, Dr. Arshad. And so he's a very good golfer. So Where he played in golf where? Gymkhana. Shouldn't say. Should say. Sometime Garrison and mostly Gymkhana. But he must have started very early. Well, at least 10, 15 years ago. 15 years ago. Not bad. He was posted in Sialkot when he started playing and then built up. And Yeah, Khalid. I'm about to leave because my wife is coming to pick me up and we have to go to a. All right, Khalid. My wife is come pick me up because we have to go to a family dinner. all right. And I said, मैं 9:30 तक तो वहीं हूँ." So I will pick you up at 10 tomorrow. Okay, that'd be great. Great. I would just be ready at 9:30. I would just check out and be sitting in the lobby. And so great to see you and thanks very much thanks for for the invitation and thanks for doing and this. see you tomorrow. Yeah, absolutely. Okay, sure. Thank you. All right, Khalid. सब ठीक है कुछ नाम नहीं जी बस सब ठीक है ये बात
No, I'm fine. किसी भी चीज मेरा तो ये खत्म नहीं हो रहा। और नहीं, बस सुबह का प्लान आपको, जुम्मा साहब ने मुझे 10 बजे पिक करना है। हाँ, सुबह के मैं आपको ना ब्रेकफास्ट करवाऊंगा उधर क्लब में। कौन से क्लब में मुझे नहीं पता, वो सुबह पता चल जाएगा। तो आप तो बैक आ ही नहीं गया ना, मैं चेकआउट करके जाऊंगा, आप उसी क्लब में पहुंच जाइएगा 11 बजे। ठीक है, बस मुझे क्लब की लोकेशन करंट रहेगी। हाँ, 11 बजे आपने क्लब पहुंच जाना है और वहीं से मुझे पिक कर लेना। 11 से देख लूंगा करीब है दूर है, पता लगे और आगे। नहीं नहीं, मैं जाते भी आपको बता दूंगा से कहाँ। हाँ, तो मैं उसी हिसाब से कॉल यू इन द मॉर्निंग। ठीक है, अभी गए सर? अरे, जुम्मा साहब का डिनर था, आपने उसकी इंफॉर्मेशन ली फिर क्रैब की? क्रैब की मार्केट तो हो चुकी थी बंद, लेकिन मैंने पूछने को करा तो लाओ मैं आपके लिए सर हाँ, कुछ खाने में। मेरे को डेजर्ट ले आए। ठीक है। हाँ, सुबह 10 बजे निकलूंगा, मैं तो उधर मिल गए वहाँ करीमाबाद की मार्केट है, वहाँ पता कर लीजिए। कहाँ? करीमाबाद की मार्केट है, 10 नंबर से पहले ले चलो। और एक वाटर पंप मार्केट है, दो हैं। इन दोनों मार्केटों में पता कर लें, होगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा अगर आ रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह निकलूंगा, उससे पहले मार्केट ही खुला है। ये ठीक है, सही ना? अगर 9 साढ़े 9 बजे चल रहा है यार, ये उठा लेना सारी चीजें, ये उठा के कोई मीठे की चीज। ये मैं खुद ले लेता हूँ। मिले तो हाँ, मैं आप ज्यादा ले आएंगे, मैं चलो ठीक है, शायद थोड़ा लेना हमारे। आपने तो खाने पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए। हाँ, the plan was कि it should be interactive during dinner. ये परसेंटेजेस में पूछूंगा यार, ऐसे तो ना करना। परसेंटेज कितनी को परसेंटेज बंदा याद कर सकता है? कितनी को परसेंटेज बंदा याद कर सकता है? साथ यार, साथ कंटिन्यू करो ना।
History of part 2 is right. Now he complains of weight gain and transmission. And then another way is 1.5, one way is minimum. जी, तो बताएं कि क्या समझे आप, क्या कॉज हो सकती है? What can be the cause? That's fine. And what can be? ट्रॉमा से क्या हुआ? एक तो ट्रॉमा की डिटेल नहीं है, ठीक है ना, कि इज इट ए फॉल फ्रॉम ट्री और ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या हाई इम्पैक्ट है, लो इम्पैक्ट है, ट्रिवियल फॉल है, क्या है? देखें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हैं आप इसका रुख। 20-year-old male patient brought with history of fall 2 days back. Now he complains of neck pain and quadriplegia. Now means not at the time of hit or whatever. So probably he was fine and then he got worse afterwards. ये वो वाले सिनारियो नहीं है कि जिसमें हाई इम्पैक्ट इंजरी है, हाई स्पीड व्हीकल्स कोलाइड कर गए, हेड ऑन कोलिजन हुआ है और उसी वक्त जो है वो वाला सिनारियो नहीं है। यू एग्री विद मी? बट एनी हाउ, आपके ज़हन में क्या क्या कॉजेज आती है विद दिस सॉर्ट ऑफ quadriplegia and injury and history of trauma? How would you say, what are the pathologies? हाँ, नहीं, कॉमन चीज पहले बताए। How many hematoma where? How many times you have operated a post-traumatic hematoma in cervical spine? Huh? Why are you telling the rare things first? लेकिन इस तरह फंसते हैं आप। ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ये तो नहीं ना कि आपके जेहन में अगर कोई रेयर चीज आ गई है तो आप बोलना शुरू कर दें। In my 30 years, I've never operated on a post-traumatic hematoma. Put it that. Neither in England nor in Pakistan. तो क्या हो सकता है ये? How would you say quadriplegia? So just talk about this patient can have a fracture, can have a fracture subluxation or a spinal instability post-traumatic. Start करें ना, this can have a bone injury, could have a ligamentous injury, could have a cord injury. तो किसी तरीके से बात का आगाज करें और फिर बढ़ते जाए। देखिए ना, पहले आप इन्होंने एक ओपनिंग फायर मारा है, अरे हिमाटोमा, अब वो फिर डिस्कशन आपकी, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस हिमाटोमा से नहीं निकलेगी अगले घंटा, वो इधर ही रहेगा घूम फिर के। इंसिडेंस क्या है, एक्स्ट्रा ड्यूरल होता है, सब ड्यूरल होता है, हाउ वुड यू पिक इट अप, हाँ जी, हाउ वुड यू ऑपरेट द एंटीरियर प्लेस हिमाटोमा, बस इधर ही रहेंगे फिर आप। सो कॉमन थिंग्स आर कॉमन। आप क्वाड्रिप्लेजिया जो है उसकी कॉमन सिनेरियो क्या देखते हैं? बॉडी का फ्रैक्चर देखते हैं, यू सी सबलक्सेशन, राइट, you see some instability from ligamentous injury, right? You see central cord syndrome and a cord contusion, स्काइबोरा इंजरी भी हो सकती है। so, इस तरह से बात करते हैं। कॉर्ड को लें, आप लिगामेंट्स को लें इंस्टेबिलिटी के लिए, आप बोन को लें, आप सबलक्सेशन को लें, आप ट्रॉमेटिक डिस्क को लें, क्या नहीं हो सकती? रेयर बट इट्स पॉसिबल, मोर कॉमन देन हीमाटोमा। सो इस तरह से बात करें। फिर ये the details of history are not available exactly, but it could be pre-existing disease and patient को ट्रॉमा हुआ है और उससे वर्ष हो गए। जैसे किसी को कैरीज हो और गिर जाए, किसी को और मसला हो तो गिर जाए। So what investigation would you do? Huh? Very good. Access cervical spine up till C7T1. And how you ensure that it's C7T1 is visible? With shoulder pull. नहीं सुना?
बाजू को खींच देते हैं, जैसे एसीडीएफ करते वक्त बाजू को नहीं खींचते आप नीचे वाला लेवल देखने के लिए, शोल्डर पर। सो स्क्रीनिंग एक्सरे ऑलवेज, एक्सरे आप करें और उसके बाद क्या करेंगे, सीटी स्कैन विद बोनी विंडोज। अब कुड यू डिस्क्राइब मी द सीटी स्कैन प्लीज? मतलब सीटी स्कैन करें, कौन करेगा? ये मेरे ख्याल में आप करेंगे, मौलाना साहब बैठे हुए हैं, आप खाने में बहुत मशहूर हैं, आप उधर देखें और स्कैन डिस्क्राइब करें। अरे बैठ के, जिस तरह से आपने दिल जमी से खाया है ना, इस तरह से दिल जमी से आप मुझे ना स्कैन की फाइंडिंग बताएं। हाँ जी। सेजिटल, नॉट सजाइटल, सेजिटल। इट माइट इरिटेट योर एग्जामिनर। जी, ओके। हम्म, कोई और व्यू है जी कि यही है? चले नहीं, पीछे चले जाए, बोन अभी अभी पीछे चले बेटा। हाँ जी, एनीबडी वुड लाइक टू ऐड ऑन टू हिज डिस्क्रिप्शन? ये आपने आपने C2 का फ्रैक्चर बता दिया, आगे चले जी। नहीं 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 नहीं, इसी के ऊपर अभी डिस्कशन आधा घंटा चल रही है। और ऐड करें कोई एनीबडी वांट्स टू ऐड ऑन इट? what goes against fracture? चले बताएं मुझे। हाँ हाँ, yes, you don't get an acute fracture bony sclerosis, number one. Number two, in acute fracture you should have a soft tissue swelling. So what is the name of this condition? Os odontedium. So this patient basically is harboring os odontedium, and this patient probably had whatever trivial trauma or whatever जो भी हुआ। तो ये बताएं कि ट्रॉमा के साथ इसको कॉर्ड, मतलब कि आखिर क्वाड्रिप्लेजिक हुआ है तो कैसे हो गया? व्हाट वुड यू थिंक? Instability. Okay, instability. So how would you confirm that there is a cord damage? MRI. Go for MRI. There's a cord contusion over there. Now, what further tests would you do and how would you treat this patient? अब आप ना वो पूरा वो उस पे ना आए क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो मुझे आपने क्विक बात करनी है मेरे साथ। आप कोई और टेस्ट हेल्प करेगा आपको? Why? Instability of what? नहीं, यस, इसको बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी। एटलेंटो डेंटल डिस्टेंस देखने के लिए क्या ये ज्यादा है या कम है, आपको ओनली डायनामिक व्यूज देंगे। ओके, व्हाई वुड यू डू एंजियोग्राफी? व्हाई? वो एंजियोग्राफी से पता चलती? नो, उसका बेटा कोई फायदा नहीं। देयर आर थ्योरेटिकल डिस्कशंस। ओके, यू डन डायनामिक व्यूज and let's suppose that it shows atlantoaxial instability. जी, ये अगर इसकी पावर 1/5 है दिन में और रोड इफेक्ट होगा तो कैसे? बिल्कुल करा सकते हैं because you have done MRI, you have excluded a big bony fragment or a disc prolapse, and you can do a very controlled flexion extension because that's the only way to find whether atlantodental distance is more or less. देखिए ना, आपने MRI के बाद करवा रहे हैं डायनामिक व्यूज, पहले नहीं करवा रहे। ठीक है, let's suppose it shows atlantoaxial instability, atlantodental distance is more. What would you do? कैसे ट्रीट करेंगे? बोले ना यार। हाँ,
क्या कहते हैं? posterior fixation followed by सबसे पहले बेटा ट्रैक्शन लगाते हैं जब भी इंस्टेबिलिटी हो, सबसे पहले ट्रैक्शन इन एक्सटेंशन, you put the traction in extension for upper cervical pathology, be it anything. उसके बाद फिर क्या करेंगे? ऑपरेशन का नाम क्या है जो करेंगे आप? हाँ हाँ जी, क्यों जी साहब, आपकी क्या प्रेफरेंस है? sir, I don't think too much vital intensity to also That's one possibility. Okay. But why you want to immobilize the suboccipit? C12 transarticular screw would be very good option. पुराने जमाने में पहले हम गेली और ब्रुक करते थे, then came the C12 transarticular screw and that's very good. और जो आपने वर्टेब्रल आर्टरी का बेटा बताया है, सीटी स्कैन के अंदर आप एक्सियल कट भी करते हैं एंड यू सी व्हाट इज द लैटरल मैस जो आपका है उसका फोरामन ट्रांसवर्सेरियम से कितना गैप है, आपका जो स्क्रू है उसकी कितनी थिकनेस होती है जो C12 ट्रांस आर्टिकुलर डालते हैं, तो 3-4 mm का होता है, 3 mm का होता है, ऐसा ही है ना? तो आपकी 3 mm से अगर ज्यादा है तो देन यूर सेफ. So there is no point in doing angiography. You do the CT scan, reconstruction, and axial view. You see the distance of the foramen transversarium and the lateral mass, जिसके अंदर screw डालना है, and in a reduced form, ideal treatment is what I love is C12 transarticular screw. If you are not trained to do that, बल्कि C12 transarticular कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको ग्राफ्ट लेके C12 के दरमियान में रख के एक जो है ना गेली वायर जो है ना वो भी कहते हैं टाइटेनियम की, वो फ्यूजन उधर भी हो जाता है, जॉइंट भी हो जाता है. उसका फायदा ये है कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशनल इंस्टेबिलिटी तीनों चीजें कंट्रोल कर जाती है, जबकि जो गेली ब्रुक जो होता है वो रोटेशनल नहीं करते. सो बस आपको 2-3 ऑप्शंस आनी चाहिए जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम गेली ब्रोक C12, आपने इसका जवाब देना है डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन, द वे यू आर ट्रेन्ड. इफ यू आर इंस्ट्रूमेंटेड फ्यूजन के बादशाह हैं तो फिर आप C12 ट्रांस आर्टिकुलेट करें, वो बेस्ट है. अगर आप इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल या देयर इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, लाइक आपका जो है वो लैटरल मैस जो है उसका चौड़ाई थोड़ी है, 2 mm आती है, तो फिर आप उसको आई वुड जस्ट गो फॉर गेली फ्यूजन और ब्रुक फ्यूजन. ठीक है, आप ऑक्सीपिटल सर्वाइकल कर सकते हैं. सो बात ये है कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस होनी चाहिए, उसकी आगे रीजंस होनी चाहिए. ठीक है, आगे चले. यार ट्रैक्शन में ये है कि इसको तो वैसे ही पहले रिड्यूस हुआ हुआ है तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है. जनरली जो है ना यू स्टार्ट, अगर 2-3 लेवल है ना तो 2 पाउंड और 3 पाउंड, 5 पाउंड, 2 और 3 हो तो क्या है 2+3 उतने पाउंड लगा दें. एंड इन एक्सटेंशन मीन्स आप इंटरमीडिएट लाइन से आगे लगाएं. वेरी सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेट मत करें कि नहीं आप 5 किलो लगा देंगे 4, ये तो पहले रिड्यूस हुआ हुआ है, ये तो डायनामिक व्यूज देखने पड़े हैं उसको करवाने के लिए. इट्स ऑलमोस्ट रिड्यूस. आपने इसको क्रच फील्ड लगा के आपने इसको 2-3 पाउंड लगा दें बस, दैट्स इट. आई जस्ट पुट हिम ऑन लिस्ट फॉर सर्जरी. आगे चलें. आपने जब पहले बार आपके पास डॉक्टर आप इस तरह करें ना कि वो जो मोबाइल से खेल रहे हैं उनको करें, उधर से स्टार्ट करें 1 2 3. आप बोले बेटा स्पेक्ट्स वाले, रीड इट आउट एंड देन जस्ट से व्हाट इट इज. डॉक्टर आप 39 ईयर ओल्ड फीमेल
Sorry, what the lesion is? No, first, this patient has got 2 years history and has got a seizures. Yes. So a seizure would make it a supratentorial lesion, and 2 year history would make it most likely extraxial. कोई एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन वैसे तो बोनी मैलिग्नेंट भी हो सकता है, but yes, 2 year history would make it an extra axial lesion. So considering that, my first possibility would be a meningioma in a non-allocated area. Right? ये स्कल बेस का भी हो सकता है, ये फ्रंटल भी हो सकता है, ये कन्वेक्सिटी भी हो सकता है. उसके बाद बाकी अगली स्टोरी है कि 2 साल हिस्ट्री के अंदर आपका कोई लो ग्रेड ट्यूमर भी हो सकता है, हेडेक्स हैं, सीजर्स हैं. इसने पेपरिडीमा का मेंशन नहीं किया हुआ. ठीक है. नॉन नॉन पेपिलिडीमा प्रोड्यूसिंग कौन से लीजन्स होते हैं? नॉन रेज्ड आईसीपी. एवीएम. एवीएम नहीं हो सकता ये. अगर आप इसको सीधा मेनिंजियोमा बोलेंगे, इट मींस आपको केस फीड किया हुआ है. बड़ा अच्छा. Usually AVM present complete not with seizures. No, you can have all sort of the commonest presentation. AVM stay many years before they bleed, and before that they present with epilepsy. AVM ये तो नहीं ना कि बनता ही फट जाता है. AVM, the commonest presentation is headache and seizure. And after staying for some time, there are many AVMs who are managed conservatively. Many AVMs are incidental findings. So they never जैसे एनुरिज्म जो है वो हमेशा सब हेमरेज के साथ ना प्रेजेंट करता. It may be incidental, asymptomatic. It's a congenital, stays there for many years and then it eventually ruptures. So, और क्या हो सकता है जी? जी. नॉन पेपरिडीमा प्रोड्यूसिंग, नॉन रेज्ड आईसीपी प्रोड्यूसिंग लीजन्स जो होते हैं ना, वो कौन कौन से हो सकते हैं? आप उसमें पेपरिडीमा नहीं होता लेकिन लीजन्स मौजूद होते हैं ब्रेन के अंदर. एक एवीएम हो गया. मेनी टाइम यू वुड फाइंड कि अरेक्नेट सिस्ट जो है ना वो पेपरिडीमा नहीं करती, क्योंकि इतनी स्लो ग्रोइंग है, वो कंपनसेटरी होती है. आपकी जितनी डर्माइड, एपिडर्माइड, कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया, डीनेट्स, आपके लो ग्रेड ग्लायोमास, ये सारे जो है ना ये पेप्लिडीमा प्रोड्यूस नहीं करते. बट दे गिव यू हेडेक्स, दे गिव यू फिट्स, दे गिव यू ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है. एज ए पासिंग बाय आपको और को डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है. अब इसमें व्हाट वुड यू नॉट मेंशन इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स, मेटास्टैटिक डिजीज. इसमें आप मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है. Sometime, yes, intrinsic intraaxial gliomas as a second possibility मैं करूंगा. My first possibility would be stent with a 2 year history. आपने जब बात करनी है, आपने अपनी तोजी खुद बयान माइक अपने हाथ में रखना है, एग्जामिनर को नहीं लेने देना. अपने हाथ में रखें कंट्रोल. जी कौन सा टेस्ट करवाएंगे? Yeah, we'll go for CT scan, CT brain plane, just to see what it is. And then if needed, MRI brain plane and contrast. चलें जी. बताएं जी. आगे सेकंड नंबर पे जो है ना, या सेकंड नंबर से तो पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने. हाँ जी, आप बताएं. सेकंड फिर थर्ड अपने तौर पे रोटेशन आते जाएं जी. स्टार्ट करें बेटा. नहीं है तो ये कैसे, वो जैसे जैसे शर्माला बैठा होता है वो वाला साहब है. अरे जस्ट गेटिंग रिहर्सल फॉर फ्री.
यार बात सुनना जरा। ये ये वो सूफले क्या चीज है जो लेमन वाला है? बोले आप थोड़ा सा। व्हाट यू कॉल दैट? सूफले क्या बोलते हैं? अगर लेडीज को नहीं पता था। जी सर, क्या डिस्क्रिप्शन दी है जी? सो ओके, यू वांट टू सी सम मोर इमेजेस? मोर इमेजेस दिखाएं जी इनको। आप बताएं। आप बताएं ये है क्या? नहीं नहीं, मनीजुमा तो है ये। अराइज कहाँ से कर रहा है? हाँ क्या? नहीं नहीं, वही वही वाला बड़ी खूबसूरत इमेज थी। नहीं प्लेनम, प्लेनम नहीं है। हाँ, लैटरल या स्फिनाइड रिज मेनिंजियोमा। क्यों? ये देखें, ये जो इसका सैजिटल है ना, उसके अंदर एक ना जो विंग है ना वो अंदर गया हुआ है, और उससे नीचे वाला टेम्पोरल पार्ट है और उससे ऊपर वाला फ्रंटल पार्ट है। नंबर वन, लैटरली ये अरेक्नाइड से भी राइज कर रहा है ये। ठीक है, सो दिस इज ए लैटरल स्फिनाइड विंग या स्फिनाइड रिज मेनिंजियोमा। दिस इज नॉट ए प्लैनम एट ऑल। प्लैनम जो है ना वो साइड वाले कट्स पे नहीं होता। प्लैनम वाला जो होता है ना वो मिडिल कट्स के ऊपर होता है, एंड इट ऑलवेज प्रेजेंट्स विद विजुअल प्रॉब्लम। और उसकी ड्यूरल टेल बेस के साथ आगे जाती है। इसकी ड्यूरल टेल लैटरल कन्वेक्सिटी पे लगी हुई है। ये भी आपको देखिए ना, वंस यू आर ए ट्रेन्ड रेडियोलॉजिस्ट, व्हेन यू आर बेटर देन रेडियोलॉजिस्ट, यू कैन प्लान द सर्जरी इन द बेस्ट वे। और अगर आपने रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स पढ़ पढ़ के आपने फैसला करना है, तो फिर आपने सर्जरी क्या प्लान करनी है ये बताएं मुझे। सो इट्स ए लैटरल स्फिनाइड विंग मेनिंजियोमा। और क्या बताएंगे? इसमें कोई वास्कुलर इनकेसमेंट है, कोई फ्लो वाइड है अंदर? नहीं है जी। एमसीए का रिलेशनशिप देखें इसके साथ। What you have to see is that what are the chances of hemiplegia in this patient? जनरली जो स्फीनल रिज मेनिंजियोमास होते हैं लैटरल, उनमें एमसीए फार अवे पुश हुई होती है, वो उसके थ्रू नहीं गुजरती। एंड इट्स इजिएस्ट अमंग द स्फीनल विंग मेनिंजियोमास टू डील विद। सो क्या करेंगे आप इसका? हाँ, पोजीशन कौन सी बनाएंगे जी? जो भी लैटरल स्फीनल विंग मेनिंजियोमास में कौन सी पोजीशन होनी चाहिए? देखिए ना, आपको पता है, लेकिन ना आपने रट्टे भी बड़े लगाए, लेकिन यूर अनेबल टू आंसर दैट। तो एग्जामिनर गेज करता है कि भाई ये फारग है, बता। इट शुड बी वेरी क्लियर। So they behave like a convexity consumer, so position will be lateral. नहीं, लेटरल कैसे होगी? आप साइड पे लटा देंगे यार। हेड टर्न्ड विद रोल अंडर द राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर जिस साइड पे भी है ये, ठीक है, और उसको टर्न करें। अब कुछ लोग 45 डिग्री टर्न करते हैं, कुछ 60-70 तक कर देते हैं। यार कीप टॉकिंग, प्लीज टॉक। मैंने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा। जस्ट हाउ वुड यू पोजीशन? So your basically terional craniotomy है, your half of more of the flap opens the frontal, and then 1/3 जो है वो आपका टेफ्लॉन भी खोलेगा। वो ड्यूरोपल करके बाकी आपको सारा पता है क्या आपने करना। इसमें क्या आप बताएंगे? मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी?
It's an easy one. It's an easy. There's no vascular encasement. Young patient, fairly preserved. 2%. यही मरीज अगर 70 year old आता है with hypertension, diabetes, ischemic heart disease, fairly high, वो 30% नहीं बोलेंगे आप. 5 to 10%, mostly extracranial. I would like to get the echocardiogram. I would optimize the patient, get a cardiology opinion, get a pulmonology opinion. बूढ़े बंदे को आपने जो है ना वो पूरी ओपिनियंस ले कि उसके बाद नाइफ चलाना है. अदरवाइज तो आप पे पड़ जाने की, इज ए बैड सर्जन. और आपने प्रूव ये करना है कि कॉम्प्लिकेशन आपके हाथ से नहीं हुई, ये लंग्स की वजह से है या लिवर की वजह से है या हार्ट की वजह से है. एंड दैट्स ट्रू मोस्ट ऑफ द टाइम. आजकल के दौर में परसिस्टेंस को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू आर जेंटल इन हैंडलिंग ब्रेन, यू डोंट गेट मच सीजर्स. ठीक है. सो वो इंटरनल डेवलपिंग, मोबिलाइजिंग, वो सारे रट्टे लगे हुए हैं, लेकिन आपने पोजीशन मेफील्ड क्रैम्प लगाएंगे आप. ठीक है. ये चीजें असल है. बाकी क्रेनियोटमी तो आप कर लेंगे. किससे क्रेनियोटमी किससे करते हैं आप? हाँ, हडसन ब्रेस चलाते हैं. कोई इलेक्ट्रिक ड्रिल भी यूज करता है कि नहीं? क्रेनियोटोम, हाँ. चले, दे आर डिफरेंट ऑप्शंस, बट ये है. तो ये बताएं कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट, जब आप ड्यूरा खोल लेते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ये मिडल स्फीनोइड विंग मेनिंजियोमा है, मीडियल है या लैटरल है? लैटरल स्फीनोइड विंग मेनिंजियोमा. हाँ, जब आप मिडल और मीडियल स्फीनोइड विंग मेनिंजियोमा में ड्यूरा खोल लेंगे तो ब्रेन ही नजर आएगा, ट्यूमर नजर नहीं आएगा. बात समझ आ गई? जो लैटरल स्फीनोइड विंग मेनिंजियोमा है उस पर थोड़ा सा आपको इतना बड़ा नजर नहीं आएगा आपको ट्यूमर, थोड़ा सा नजर आएगा झांकता हुआ. बाकी फ्रंटल लोब के अपर्कुला कवर करेंगे और टेम्पल करेंगे. व्हाट वुड यू डू नेक्स्ट? ब्रिंग इन द माइक्रोस्कोप, do the arachnoid dissection, and separate the normal brain from the tumor with a gentle microsurgical magnified arachnoid dissection. रिट्रैक्टर यूज करने का रिवाज खत्म हो गया हुआ है. यू जस्ट डू मिनिमल. सच में मुझे तो कई साल हो गए रिट्रैक्टर यूज नहीं करता. आप अगर बहुत जेंटली, आप अगर डैमेज नहीं करते ओवरलाइंग फ्रंटल बोन को, फ्रंटल लोब को, टेम्पोरल को, आपके फिट्स भी नहीं होते, एडिमा भी बाद में नहीं होती. आपकी सारी कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट ऑपरेटिव मिस हैंडलिंग की वजह से होती है, जिसमें ब्रेन कंट्यूजन, ब्रेन को रोटेक्ट किया. उसकी ब्रेन तो ऐसा है, यू शुड स्टील अवे द ट्यूमर फ्रॉम द ब्रेन. आप इस तरीके से ट्यूमर निकाल लें कि दिमाग के जो ऊपर हिस्से आए हुए उनको पता ही ना चले. जैसे आप लिहाफ में सोए हुए हैं, कोई आपको जेब काट के ले जाए. अरे, यू शुड स्टील अवे द ट्यूमर. ये मेराज है. ये जितने मेरा एक्सपीरियंस है, नाउ आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, ये जितने पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटीज और सारी होती है ना, ये सारी मिस हैंडलिंग की वजह से होती है ऑफ द नॉर्मल ब्रेन. और नेवर जंप, नेवर डू दीज ट्यूमर्स विदाउट माइक्रोस्कोप. ऑलवेज यूज माइक्रोस्कोप, बिकॉज गेम बड़े वेसल्स की नहीं, गेम तो माइक्रोवास्कुलेचर की है, अरेक्नाइड प्लेन की है, अरेक्नाइड को देखने की है. एनीहो, बात लंबी होती जा रही है, बट वो आपको फार्मूला अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल में. 1 to 2% mortality and 5% morbidity in a good Karnowski, हाँ. Even came to a medical part of it too, and because of unfortunately change the month, we are complained of my headache for last 1 month. So in general, to bilateral capital edema is. जी, 21-year-old male came to neurosurgery with 2 episodes of unconsciousness in 3 months. Okay. He also complains of mild headaches for last 1 month.
सो व्हाट इट इज, बताएं। नहीं, it's papilledema is a raised ICP, most likely from hydrocephalus, most likely, or it could be from a tumor or it could be from edema. अब ये हिस्ट्री जो है वो 3 मंथ से हो रही है। पहले तो आप जो हाइड्रोकेफलस जब भी न्यूरोसर्जरी में होगा ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, तो जो पहले की काजेस मैंने बताई हैं वो सारी आपने तो छेड़ देनी है, इसके अंदर बनती है ना। इसके अंदर मान लो कि ब्लॉकेज इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर हो गया, आपके एक्विडेक्ट का हो गया, आपका मिड लाइन ट्यूमर्स हो गए, कीप ऑन टॉकिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। मनरो में आपकी कोलाइट भी हो सकती है, मनरो में आपका न्यूरोसाइटोमा भी हो सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर भी हो सकता है, मिड लाइन ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, और क्या चीज हो सकती है, और नॉन ऑलिकेंट एरिया के अंदर कोई भी मैस लीजन हो सकता है आपका। अगर आप हाइड्रोकेफलस से बाहर निकलते हैं तो एनी मैस लीजन causing raised ICP but not producing any focal deficit in arms or legs. It could be a frontal lobe. ठीक है, और ये 2 episodes of unconsciousness है, 3 months की हिस्ट्री है, so that would be the differential diagnosis. इसमें आपके इंट्राक्सियल भी लीजन आ जाते हैं, इसके अंदर डिकम्पनसेटेड आपके एक्सट्राक्सियल भी आ जाते हैं। सो इट्स ए वाइड चैप्टर, ये जो सिनारियो है इसमें बहुत सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस, गोइंग डाउन टू नॉन एलोकेंट एरिया लोकलाइजेशन ऑफ द लीजन्स, बोथ इंट्राक्सियल एंड एक्सट्राक्सियल। आगे चलें जी, क्या स्कैन एमआरआई क्या करवाएंगे, ले जी कोई निकला। जी बेटा क्या है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट वुड यू डू मोर, व्हाट्स द डायग्नोसिस। कोलेट सिस्ट है, और क्या हो सकता है। देखा ना, कंट्रास्ट स्कैन नहीं है। आई वुड लाइक टू डू एन एमआरआई प्लेन एंड कंट्रास्ट। कोलेट सिस्ट एनहांस नहीं करेगी, आपके जो ग्लाइमस या जो लीजन है वो एनहांस करेंगे। सो दैट्स अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये ना कि कोलेट सिस्ट बन के आप एंडोस्कोपी करें पता चले ये ग्लाइमा को डील कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया। और एमआरआई का क्या फायदा है इन ए कोलाइट सिस्ट। हाँ, एमआरआई किस तरह से हेल्प करता है इन कोलाइट सिस्ट, और वो बहुत हेल्पफुल है। हाँ, T2 पे यार अगर ब्लैक हो तो ये हार्ड होता है, बात खत्म होगी। T2 पे ब्लैक हो तो हार्ड होता है। If you start with endoscopy, you're going to fail. So that's an indication for transcortical or whatever approach, craniotomy wise. Most likely. बहुत छोटी हार्ड हो तो आप निकाल लेते हैं, बड़ी अगर हार्ड हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। सो ये चीजें जो है ना, ये आपका ब्रेड एंड बटर है बेटा, ये तो कॉमन है। ये देखिए इस तरह का सिनारियो, कोलेट्सिस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, आप उधर रुक गए हैं। ग्लाइमा भी हो सकता है, न्यूरोसाइटोमा भी हो सकता है। ठीक है, कंट्रास्ट करवाना है आपने। ठीक है, उसके बाद एमआरआई का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इट टेल्स यू द कंसिस्टेंसी। जो चीज ब्लैक नजर आएगी ना एमआरआई पे, वो हार्ड हो, एंड दैट होल्ड्स गुड फॉर पिट्यूटरी ट्यूमर एज वेल। जो पिट्यूटरी ट्यूमर T2 के ऊपर मध्यम हल्के सिग्नल के होते हैं वो तंग करते हैं, दे मे बी स्टिकी। ये पहला प्रिंसिपल है, दे कैन बी स्टिकी, and if you're doing a sticky tumor to the nose, it can be very problematic. So क्या अप्रोच करेंगे बेटा इसको, लुकिंग ऑन दिस स्कैन। अगला कौन रह गया जी, आगे आ जाए। ये, हाँ जी आप बताएं जी, ये व्हाइट टी शर्ट वाले जी, आप विद ग्लासेस। हाँ, कितनी अजीब बात की आपने, ट्रांसक्लोजर क्यों करेंगे।
What is the absolute indication of doing transcallosal approach? When the ventricles are small or collapsed and the colloid cyst is there. ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन। तो आप एंडोस्कोपी क्यों नहीं करते इसको, ये बताएं। ये एक कट है, ये दूसरा कट को और है आपके पास नहीं होगा। इसमें अगर हाइड्रोकेफलस है तो आई एम श्योर इसके वेंट्रिकल्स बड़े होंगे। तो यार लार्ज वेंट्रिकल T2 के ऊपर हाई सिग्नल है, ये तो हलवा केस है फॉर एंडोस्कोपी। तो आपने वो ट्रांसक्लोजल बता दिए, पता नहीं कहां से सुन लिया आपने, कितनी गलत बात है। सो आपने कहना देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, हाउ यू टॉक, देयर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ मैनेजिंग दीज लीजन्स because this patient is low signal on T2 and because there is a hydrocephalus. So the best option if the surgeon is trained is endoscopic excision. अब मुझे को शेर का बच्चा बारहोल की प्लेस बता दे कोलेट सिस्ट में। हाँ ना एक बताएगा। अच्छा मुझे ये बता दें कोलेट सिस्ट किस किस के यूनिट में होती है, ताकि मैं टाइम जाया ना करूं। किस किस के यूनिट में कोलेट सिस्ट एंडोस्कोपिकली होती है, आप बताएं फिर कौन सा लैंडमार्क है। एंटीरियर तो हो गया, कोरोनल तो लैटरल कितना है, सॉरी क्या कहते हैं। थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी और कोलाइड को अप्रोच करने के लैंडमार्क्स में क्या फर्क है, कितना हाउ लैटरल। हम कोलाइड जो थर्ड वेंट्रिकुलर के लिए हम 3 सेंटीमीटर रखते हैं, इसके लिए हम 5 सेंटीमीटर। यस, कोलाइड सिस्ट इज मिड पेपिलरी लाइन bang on the coronal suture, some people go slightly behind it, ठीक है। ventriculostomy, third ventriculostomy। कोलाइड सिस्ट में ये देखें, कोलाइड सिस्ट में क्या होता है, ये देखें, मेरा मेरा चेहरा देखें और गर्दन देखें। थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी में आप हर चीज सामने जाना है तो आप दरमियान में मिड लाइन के करीब ऐसे जाएं। आपने कोलाइड सिस्ट कहां से अराइज करती है, रूफ से करती है, तो आपने कहां देखना है, ऐसे देखना है ऊपर, आपने चांद देखना है। तो आप क्या होंगे, आप चांद देखने के लिए झुकेंगे ऐसे। So you go more lateral and more anterior so that you peep onto the roof of the third ventricle, जहां से ये अराइज करती है। असल गेम वहां से रिलीज करने की है। जो लोग पहले पुराने जमाने में थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी के लैंडमार्क से करते थे, they were leaving a lot and had a lot of complications. So septostomy or colloid cyst is 5 centimeter lateral from the midline and just anterior to the कोरोनल सुचर। और कोरोनल सुचर जैसे लैटरल जाता है ये खुद ब खुद एंटीरियर होता जाता है। आप अगर देखें ना स्कल, तो कोरोनल सुचर लैटरल आगे है और जो कोरोनल सुचर का मीडियल पार्ट है वो थोड़ा सा पीछे है। तो आपने लैटरल पार्ट के भी जस्ट बैंग ऑन जाना है, वो ऑलरेडी आगे गया होता है। बात समझ आ गई। सो सेप्टोस्टमी जो है उसके भी लैंडमार्क एग्जैक्टली ये है। तो अगर आपको लैंडमार्क ही पता है ना तो आपको आगे कोई नहीं पूछेगा कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं पूछेगा। लैंडमार्क से यू गो इनटू कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, और कौन सा है। दो सिस्टम्स बता दें जो यूज होते हैं कोलर सिस्ट निकालने के लिए या क्रेनियल एंडोस्कोपी करने के लिए। एक गाप सिस्टम है, एक लोटा सिस्टम है। लोटा सिस्टम की क्या सुपीरियरिटी ओवर गाप सिस्टम और क्या नुकसान हैं इसके, ये बहुत लंबी डिस्कशन है। यू हैव टू बी एन एंडोस्कोपिस्ट, बट ग्रॉसली आपको पता होना चाहिए जो गाप सिस्टम है उसके थर्ड पोर्टल नहीं होता, साइड से आप चैनल में, हाँ उसमें नहीं एंटर नहीं कर सकते। इसमें फ्लेक्सिबल होते हैं जिसको साइड से आप एंटर करके तो आप बकायदा होल्ड करके आप कर सकते हैं, ठीक है। गाप की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जरा बड़े साइज के हैं, क्रूड है, ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ ज्यादा है। जो लोटा सिस्टम है उसके इंस्ट्रूमेंट नाजुक हैं लेकिन टूटते बहुत ज्यादा। हमारे सेटअप में पेन्स में मैंने पता नहीं कितने लोटा सिस्टम रिप्लेस करवा चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, ये जो फ्लेक्सिबल डलते हैं अगर टूट जाते हैं बहुत जल्दी। अरे जी, सो पीडियाट्रिक एंडोस्कोप और होती है, उसका साइज कैलिबर छोटा होता है। सो ये चीजें आपको ना किसी ने आपसे प्रोसीजर नहीं करवाना, उन्होंने इस किस्म के चीजें पूछनी है आपसे। आपसे ये नहीं पूछना कि कैसे निकालेंगे, और वहां तक तो बात ही नहीं जानी।
बेसिकली कापा बियांका तो सर्जन था। इसमें जो आपकी 0 डिग्री है ना, वो एंडोनेजल के लिए यूज होती है, 0 डिग्री। ठीक है। एंड 0 डिग्री में इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर नहीं डालते, आप अलाउंग डालते हैं, ये बात याद रखना। जितनी आपकी क्रेनियल एंडोस्कोप से उसमें इंस्ट्रूमेंट चैनल के थ्रू जाता है, आप उसको अलाउंग नहीं डालते, अनलेस यू आर डूइंग ब्राउ क्रेनियोटमी जैसे मैं करता हूं, लाइक एंडोनेजल। वो बहुत, ये बहुत सब स्पेशलिटी है ऑलमोस्ट, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसक्रेनियल जो एंडोस्कोप है, जिसमें लोटा सिस्टम है या गाप सिस्टम है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो चैनल के अंदर से पास करने हैं। और जो आप पिट्यूटरी में करते हैं 0 डिग्री में, उसमें उसके अलाउ करते हैं। मतलब ये हाथ जा रहा है तो इसके पैरेलल बाहर से इंस्ट्रूमेंट जाएगा। इंस्ट्रूमेंट पहले जाता है, बाद में एंडोस्कोप डालते हैं। वो जैसे नाक में आप घुसेड़ते हैं पिट्यूटरी रॉन्जर, ये वो वाला काम, बट विद द लाइट ऑफ एंडोस्कोप गोइंग इन, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो आगे चलें जी। जी इधर से करते हैं। ये फीमेल में ये लीजन है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है जी? हाँ, व्हाट इज द पैथोलॉजी यू थिंक? ओके, व्हाट एल्स? ग्रीन टी। शुगर तो नहीं है आपने? नहीं, अरे हार्मोन डेफिसिट जो है ना, वो किसी से भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके सेलर सुप्रा सेलर पैथोलॉजी हो सकती है। उन्होंने विजुअल फील्ड डेफिसिट का नहीं कहा, तो जब अकेला पिट्यूटरी का भी बेटा आपने नहीं किया, ये कहा जब तक स्कैन नहीं हो जाता आपने, मोस्ट लाइकली ये सेलर सुप्रा सेलर पिट्यूटरी ट्यूमर्स, बट इट कुड बी ए मेनिंजियोमा, इट कुड बी इवन अरेक्नोइड सिस्ट हो सकती है, सुप्रा सेलर अरेक्नोइड सिस्ट हो सकती है, इट कैन बी जर्मिनोमा हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी क्रेनियोफ्रेंजियोमा हो सकता है। तो इसको बात को बनाएं, थोड़ा सा बात को आगे चलाएं। अरेक्नोइड सिस्ट, जर्मिनोमा, ओके। ये बताएं कि ये एमेनोरिया कर सकता है मेनिंजियोमा? हम्म, कैसे? स्टॉक इफेक्ट, आंसर शुड बी प्रिसाइज। स्टॉक इफेक्ट, प्रोलैक्टिन ही बढ़ना है ना। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिनोमा से बढ़ा लें, या आपके हिसाब से देखे ना, प्रोलैक्टिन अगर 20 अपर लिमिट है, तो इसको जस्ट 40 आप कर दें, मेनोरिया हो जाएगा। तो वो 40 तो स्टॉक इफेक्ट है। सो ये प्रोलैक्टिनोमा ही नहीं है, देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ सुप्रासेलुलर कल्प्रिट्स व्हिच प्रोड्यूस द स्टॉक इफेक्ट। इनहिबिटरी हार्मोन को वो स्टॉप कर रहे हैं। चले जी, यू वुड गो फॉर सीटी एंड एमआरआई। एक्सरे तो खैर मेरा ख्याल में ये तकल्लफ ही होगा। दैट्स टू प्रिमिटिव। हाँ, हाँ जी, सीटी स्कैन हो गया जी।
प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट विद पिट्यूटरी प्रोटोकॉल, ये भी बात करनी है। क्या पता चल गया पिट्यूटरी प्रोटोकॉल क्या होता है बाय द वे? Shows the cuts from the west to the all the way to like ice. 1 mm यार कट्स करने हैं पिट्यूटरी एरिया के, बात खत्म होगी। और नाइस कोरोनल दिखाना है आपने और कंट्रास्ट दिखाना है, ठीक है जी। ट्यूमर एनहांस करता है या पिट्यूटरी एनहांस करता है? हाँ ना ना, कोई कोई मिनट काउंट नहीं करता, कोई पता नहीं चलता। पिट्यूटरी ऑलवेज एनहांसेस मोर देन मैक्रोएडिनोमा, ये मिनट मुनट वाला साहब को नहीं करता। गोल्डन प्रिंसिपल इज कि पिट्यूटरी की अपटेक कंट्रास्ट की ज्यादा है। और व्हाट आई डू व्हेन आई डू एंडोनेजल सर्जरी, मैं एक्चुअली कोरोनल के ऊपर पहले लोकेट करता हूं कि वेयर इज अ नॉर्मल पिट्यूटरी एंड आई स्टार्ट द डिसेक्शन फ्रॉम दैट साइड टू सेव द नॉर्मल पिट्यूटरी। बड़ा आसान है, मुझे अभी कंट्रास्ट स्कैन दिखा दें सारे, ये तो कोई रैंडम कट होगा, मैं आपको बड़े आराम से नॉर्मल पिट्यूटरी दिखा दूंगा कहाँ है, वेरी इजी। कोरोनल और सेजिटल के ऊपर आपको नॉर्मल, ये तो एट रैंडम कट्स है ना, देखे ना इसका ऊपर वाला पार्ट, लेकिन ये कैपिंग की तरह होता है, जस्ट जैसे कैप नहीं पड़ी होती, मौलवी नहीं रखते पतली सी कैप जुमे वाली, वो ऊपर उभरी हुई नहीं, जो फ्लैट होती है वो वाली, इस जस्ट सॉफ्ट कैपिंग, बड़े आराम से पता चलता है, इट्स वेरी इजी टू नो। थिन कट्स होने चाहिए, पिट्यूटरी प्रोटोकॉल होना चाहिए। आई पर्सनली वुड फाइंड, अगर मेरे पास पॉइंटर हो तो आई कैन सी के सेजिटल के ऊपर जो जो ये पार्ट है ना, ये सब ऑक्सीपिट का, अगर ऊपर वाली ऑक्सीपिट है तो पीछे वाला पार्ट देखे थोड़ा सा एनहांसमेंट ज्यादा हो रही है उसकी, वो नॉर्मल पिट्यूटरी पड़ा हुआ है आपका शर्तिया। ये आपके एग्जाम के लिए ये डिस्कशन नहीं है, दिस इज अ वेरी एडवांस डिस्कशन। इसका यार कहाँ है? नहीं है, ये देखिए, ये नॉर्मल पिट्यूटरी है ये। और कोरोनल के ऊपर आपका यूजली ये लेफ्ट साइड पे होता है, ये है, ये नॉर्मल पिट्यूटरी इस तरह का नहीं होता, ये है, ये 100% नॉर्मल पिट्यूटरी है। तो जब मैंने स्टार्ट करनी है तो इंफीरियर पार्ट को निकालते हैं, फिर मैं नॉर्मल जो पिट्यूटरी उस साइड पे लेफ्ट साइड पे कवर्नस आने के साथ होता हुआ मैं यहां तक जाता हूँ, इसको आइडेंटिफाई करके फिर आप नीचे से इधर आते हैं और फिर ये कॉर्नर निकालते हैं। बट एनी हाउ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम बिट, दिस इज टू एडवांस थिंग। बेटा आपका chasm तो पिट्यूटरी से बाहर होता है। यू नेवर एनकाउंटर दैट, देयर इज अ arachnoid plane over it. ऑप्टिक chasm, आप फ्रंट से पीछे आएंगे ना तो यू पिक अप विद ऑप्टिक नर्व। जितना ट्यूमर नॉर्मल मॉडरेट साइज का होगा उतना ज्यादा आसान है देखना उसको, ठीक है। जितना ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है सम टाइम द ऑप्टिक chasm में बी जस्ट फ्लैट। नहीं, उन्हें कहें जी कि मैं इसमें आप मुझे सारी इमेजेस दिखाएं, आप ऑप्टिक नर्व से ट्रेस करें उसको, ऑप्टिक नर्व के 2 डॉट नजर आए कि जहां वो चौड़ा बन जाता है वो ऑप्टिक chasm होता है। कोई मसला नहीं, अगर ट्यूमर छोटा हो तो बड़े आराम से पता चलता है आपको। यू माइट बी लुकिंग एट द रॉन्ग कट्स, देखे ना, अगर आप chasm से इंटीरियर कट देख रहे हैं तो वो ऑप्टिक नर्व आएंगे, chasm से पीछे देख रहे हैं तो ऑप्टिक ट्रैक्ट्स आएंगे। सो यू हैव टू एक्चुअली सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे से स्टार्ट करते हैं कोरोनल कट्स को देखना, तो बड़े आराम से आपको मिल जाता है। अगर आपको कोई एक कट बता दे तो अनलेस द ट्यूमर इज स्मॉल यू कैन नॉट टेल। जी, क्या करेंगे इसका? You would get the endocrine profile, okay, which includes नहीं, ऑल क्या यार, बोलो नाम तो बोलो ना क्या। हाँ, एसीटीएच नहीं कहते, एसीटीएच नहीं, मॉर्निंग इवनिंग कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन,
FT3 FT4 TSH फ्री ऑलवेज, ठीक है। अगर इतनी ग्रोथ क्यों करना है जब एक्रोमेगाले की नहीं है तो क्यों करना है? आप चाहते हैं तो FSH-LH कर लें, हेमेनोरिया, ओके। नाउ लेट्स सपोज द प्रोलैक्टिन लेवल कम्स 120 nanogram, 120 nanogram per ml, and the patient is losing vision. ऐसे ही है ना, विजन डाउन है ना इसकी, हेडेक्स भी हैं, क्या करोगे? अच्छा, दूसरा, अगर आपने ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालना हो ना तो कोरोनल के ऊपर नॉस स्कोरिंग कर दें, एग्जामिनर को नॉस ग्रेड कर दें, यार आसान है। ये कौन सा नॉस का, ये 3 है, हाँ, ये राइट पे 3 है, लेफ्ट पे 2+ कर सकते हैं इसको, तो दैट एड्स जैसे खाने में जो है ना, वो आप गरम मसाला डाल दें तो इट एड्स फ्लेवर, इट एड्स फ्लेवर, गुड फ्लेवर। कहता है कि यार ये तो मुझे ही जो है वो मतलब के ले दे के बैठ गया, ये नॉस स्कोरिंग भी बता रहा है और इधर तो कर इसने आगे जाके क्या करना है। सो यूज योर नॉलेज वेरी जुडिशियसली। सो नॉस ग्रेडिंग कर दें चलते चलते। अब मुझे ये बताएं कि इसका प्रोलैक्टिन लेवल 120 या 30 है, क्या करेंगे? पेशेंट विजन डाउन डाउन जा रही, नहीं नहीं इस तरह नहीं ना, आप नहीं ना, इधर आ जाए, हाँ जी, आप टी शर्ट वाले, ब्लैक टी शर्ट पर क्या करेंगे? पेशेंट की विजन जा रही है, हाँ जी, surgery. If I am the examiner, I will not ask any question. Why do you think the surgery is going to fail? Why do you think the surgery would fail for sure? It's NOS grading 3, prolactinoma. You cannot cure with surgery. Full stop. हाँ, करना ही मेडिकल है। एंड जो पार्लर डल है वो 6 घंटों में काम शुरू करती है, 6 घंटों के अंदर काम शुरू करती है, 2 दिन बाद नजर बेहतर होना शुरू हो जाती है। बेशक आप बेट लगा लें मेरे साथ, तजर्बा कर लें, किताबें पढ़ लें, पेपर्स पढ़ लें, because if you do surgery, still patient would stay on parlor. ऐसे ही है ना, NOS 3। So what's the point? Oh, by pituitary, what are the indications of conservative management of pituitary tumors? चले, conservative medicines या no medicine? Incidental finding or small non-functioning pituitary adenomas. Number 1. Number 2, prolactinoma. Number 3, आपकी एपोप्लेक्सी, कंटेन्ड एपोप्लेक्सी, जिसमें विजन नहीं जा रही, प्रोटोसिस थोड़ा सा हुआ है, कंटेन्ड पिट्यूटरी है, उसने अपने आप ही डिस्ट्रॉय कर लिया, आपने क्या लेना है उससे? वो ठीक हो जाएगा पेशेंट, प्रोटोसिस खुल जाएगी उसकी इन स्टेबल पेशेंट, नॉट विदाउट विजुअल कॉम्प्रोमाइज। और एनी पेशेंट जो कि मेडिकली अनफिट है या एल्डरली है और ट्यूमर जस्ट टचिंग क्याजम या अभी ऐसा कोई नहीं कर रहा तो यू मैनेज कंजर्वेटिव। So small non-functioning adenomas and prolactinomas are, आपने या सर्जरी नहीं करनी या मेडिकल थेरेपी सिर्फ एक कंडीशन में ही तो है, वो प्रोलैक्टिनोमा में है ना, ग्रोथ हार्मोन में मेडिकल थेरेपी है, वो इंजेक्शन है फॉर लाइफ या एडजुवेंट थेरेपी है, रेडिएशन है या सर्जरी। सिमिलरली कुशिंग डिजीज है, उसके लिए भी सर्जरी है। तो एक ऐसी कंडीशन है विच रिस्पॉन्ड वेरी वेल, वो प्रोलैक्टिनोमा है, उसमें आप सर्जरी कह रहे हैं। तो आप दुनिया के किसी एग्जाम में बैठ जाएं, अगर प्रोलैक्टिनोमा का पहला ट्रीटमेंट आपने सर्जरी बता दी तो आपसे नो मोर क्वेश्चंस टू मी। इसमें भी हम यही पहले प्रोडक्टिव स्टार्ट करेंगे, किसमें? देखिए विजुअल, मैंने बताया कि 6 घंटे के बाद इसकी विजुअल इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। 6 आवर्स में
आपका पालोडल थेरापी विजन शुरू कर देती है। देखिए, अनलेस इट्स एन एपोप्लेक्सी, नो ट्यूमर लीड्स टू सडन विजुअल डिटोरेशन। आप मुझे चैलेंज करता हूं मैंने, एपोप्लेक्सी के अलावा किसी कंडीशन में सडन डिटोरेशन नहीं होता, इट इज स्लो, और 6 घंटों के बाद इसका असर शुरू हो जाता है। ये कौन सी अप्रोच करेंगे? इधर से को बताए ना यार, वही चेहरे, हाँ जी, रेड टी शर्ट। नहीं, ऐसे नहीं बात करते हैं। देयर डिफरेंट ऑप्शंस, देयर आर डिफरेंट ऑप्शन based on the preference of the training of the surgeon, ठीक है, एंड जो वार्ड रूटीन किसी की हो, ठीक है। आपको पता है कि पिट्यूटरी ट्यूमर्स के लिए पाकिस्तान के अंदर स्टिल 70% क्रेनियोटमी हो रही है, आपको पता है इस चीज का? 70 to 80% सर्जन आर स्टिल डूइंग क्रेनियोटमी। वो बाहर निकल के शायद वो एंडोस्कोपिक सर्जन हो, लेकिन इनफैक्ट 70 से 80% सर्जन अभी भी दे आर डूइंग क्रेनियोटमी फॉर पिट्यूटरी ट्यूमर्स। So don't forget that your examiner might be one of those. So there are different options depending upon the routine of the unit, the training of the surgeon. आप बात करें, आपको कोई नहीं फेल करेगा इस चीज के ऊपर। You can go transcranially, you can go transnasal, transphenadal with a microscope, you can go pure endoscopically, mononarial, binarial. अरे यार, बात शुरू तो करें, माहौल बनाए आप ना एक, आप तो बात ही खत्म कर देते हैं, दिल ही तोड़ देते हैं। माहौल बनाए आप एक ना, तो बात करें। हाँ। ये पता क्या, साथ आई पास साथ लाहौर में हुआ था ना, जब पास हुए थे तब। बात ये होती है कि माहौल बनाते हैं, करते हैं, बात से बात निकालते हैं। हाँ हाँ। सो ये आई विश कि वो शुड हैव मोर टाइम। तो बात ये कि मुझे तो कहेंगे तो मैं तो सारी रात बोलता रहूं। मैं तो कोई अपना मटेरियल अपने साथ लेके नहीं आया लाहौर से। ये तो ये मुझे दिखा रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं। सो So I think pituitary may, I think if you want to go endonasally, you must get CT-FES. That will show the pathway of the nasal septal deviation, the concha bullosa है नहीं है, sphenoid sinus की निमोटा। यार मैंने आपको कुछ पिक्चर भिजवाई थी, वो लगाई है आपने? वो जरा इधर ट्रांसफर करो ना। ये तो लाइव पेशेंट है जो 2 दिन पहले मेरे पास आया है। तो CT-FES आपने आपने नेजल एनाटमी देखनी है, सेप्टल डेविएशन देखनी है, आपने कॉन्कल एनाटमी देखनी है, आपने स्फीनाइड साइनस की न्यूमेटाइजेशन देखनी है, उसकी सेप्टेशन देखनी है, ठीक है। आपने सैला का साइज देखना है, आपने इरोजन इनटू द स्फीनाइड साइनस देखना है। हाँ जी। यार आजकल सच्ची बात है, अगर मेरे से पूछे ना, तो मैंने अपनी जिंदगी में पिट्यूटरी के लिए शायद 2 या 3 या 4 क्रेनियोटमीज की हो जिंदगी में, एंड आई हैव रिटायर्ड, अगर आप मेरे से पूछे। सो बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप क्रेनियोटमी से निकाल ही नहीं सकते। माइक्रो एडिनोमा नहीं आप निकाल सकते। अब जो क्रेनियोटमी सर्जन है उसे कहे माइक्रो एडिनोमा कैसे निकालेगा, वो तो पढ़ाई बेस पे होता है। सो बट देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस फॉर क्रेनियोटमी, डेफिनेट। वो क्या है? when the tumor is multi compartmental, मेरे के टेम्पल में भी जा रहा है और फ्रंटल लोब की तरफ भी जा रहा है, और when it is like a cone or like a cauliflower,
ठीक है, और व्हेन यू हैव ए कॉन्कल टाइप ऑफ स्फीनाइड साइनस और प्रीसैलर स्फीनाइड साइनस, अभी भी इंडिकेशंस हैं क्रेनियोटॉमी करने के, बट यू शुड नो इट। ठीक है ना? तो क्रेनियोटॉमी कहना कि जी बिल्कुल ऑब्सलीट हो गया, दैट्स रॉन्ग, स्टिल इंडिक। और मैसिव जॉइंट पिट्यूटरी ट्यूमर्स, लोगों ने सीरीज प्रेजेंट की है कि वो ट्रांसक्रेनियल, इधर यूनली ऊपर तक ट्यूमर गया हुआ है, तो ऊपर छोटी सी क्रेनियोटॉमी करके वो डाल के तो सीधा नीचे तक गया। ये टर्किश जो है ना, ये प्रेजेंट करते हैं जाइंट पिट्यूटरी ट्यूमर्स कि मैंने जो तस्वीर आपको भिजवाई है, रियली अमेजिंग। नहीं नहीं, मैं आपको भिजवाता हूँ। कोलेक्टिनोमा में पार्टमेंट या रोबोटिक होने के बाद कोई इंडिकेशन है सर्जरी की, मतलब कभी Oh yes, it can be. It can be. फिर Oh yes, lot of people get side effects, and sometimes after initial response, the patient's prolactin level doesn't settle. So there is an indication. Well, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन निकाल लेते हैं आप। ठीक है, लेकिन there are always indications of surgery for prolactinomas. The commonest is the side effects. दूसरा ये है कि ट्यूमर साइज रिग्रेस ना करे रैपिडली, वो बहुत कम आता है, वेरी रेयर, सर्जरी के बाद ज्यादा है। तो मेडिकल थेरेपी से सीजर लीक जो है ना, वो इतने कॉमन है जितना स्पॉन्टेनियस राइनोरिया।